has arrived. As you're aware, the forthcoming 13th Pravasi Bharatiya Divas, scheduled to be held in Gandhinagar, Gujarat, also marks 100 years of Mahatma Gandhi's return to India. May I request the Special Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs, Shri Sunil Soni, to introduce the event. Honorable Ministers on the dais and the friends from the media. As you all are aware, we are celebrating the Pravasi Bharatiya Divas. We have celebrated from the year 2003 onwards to have an occasion in which we can interact with the diaspora from India and all over the world. And this day has been done on the 8th and 9th of January every year to coincide with the homecoming of Mahatma Ji on the 9th of January 1915, when he came back to India from South Africa and started his various initiatives in this country. This year's PBD is slightly more important in the sense that this is the 100th year of Mahatma Ji's return from South Africa when he came back in 1915, as I mentioned, on 9th of January. On 9th January 2015, he'll complete 100 years of his return. So that's why this year's event is slightly more important, and that's the focus we have been trying to give to this. We have announced this event quite some time back, and the event has been organized in Gujarat because Gandhiji had come back from South Africa in Gujarat. So Gujarat has been the partner state for us this year, and this event is being organized also in the Mahatma Mandir complex, which is a venue which has been selected for this event. Today is the formal launch for this particular event, which we are about to witness now after this. But the more important thing which we're trying to do in this whole thing is to focus this whole event around Mahatma Gandhi return and what he achieved during this particular when he came back, what he did, what were his major contributions to us in transforming the society in addition to getting us freedom. So that's the focus we are trying to do. We are also doing a small exhibition at the same place which will showcase the initiatives of Mahatma Ji as well as the other important ministries as they would like to showcase the whole event. I think with this introduction I'll stop and request the Minister to make her opening remarks. नमस्कार मित्रों, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में है, इसलिए जो भी प्रश्न आप पूछें वो प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित ही पूछें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात इस बार का हमारा पार्टनर स्टेट है, उसकी प्रतिनिधि के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बहन आनंदीबेन पटेल हमारे साथ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स केंद्र से हमारी पार्टनर मिनिस्ट्री है, उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे राज्य मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल हमारे साथ हैं। जनरल वीके सिंह मेरे अपने विभाग के राज्य मंत्री हैं, मेरे सहयोगी, वो हमारे साथ इस मंच पर हैं। आपको मालूम है कि पिछले 12 वर्षों से हर वर्ष 7 से 9 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये अटल जी की सरकार की एक पहल थी, उनका एक इनिशिएटिव था। 2003 से हम लोगों ने ये शुरू किया और उनके समय में एक वर्ष ये मनाया गया। उसके बाद से यूपीए सरकार सत्ता में आ गई तो लगातार उस प्रथा को जारी रखा गया। ये 13वां वर्ष है प्रवासी भारतीय दिवस का। तारीखें हमेशा तय रहती हैं,
और 9 जनवरी हमने क्यों चुना? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 9 जनवरी इसलिए चुना कि महात्मा गांधी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रवासी भारतीय हैं, जिन्होंने भारत आकर उसकी दुर्दशा को अंगीकार ही नहीं किया, उसको सुधारने का एक बीड़ा उठाया और सुधार कर, यानी आजादी दिलाकर, गुलामी से निकालकर दम लिया। तो एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय, प्रवासी भारतीय के नाम के पीछे ये दिन चुना गया और वो तिथि तय की गई। हमेशा इसका उद्घाटन 8 तारीख को प्रधानमंत्री करते हैं और हमेशा 9 तारीख शाम को राष्ट्रपति जी प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करते हैं, जिनकी संख्या अधिकतम 15 हो सकती है। तो जो चीजें परंपरा के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको तो हमने वैसे ही रखा है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, 9 तारीख शाम को राष्ट्रपति जी प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगे। लेकिन 7 से 9 के बीच में इस बार हमने कुछ बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए हैं प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने के लिए। जैसा अभी सेक्रेटरी बता रहे थे कि ये 100वां वर्ष है गांधी जी की वापसी का। वो 9 जनवरी 1915 को आए थे, इस बार 9 जनवरी 2015 को हम ये मनाएंगे, 100 वर्ष होंगे। तो शताब्दी वर्ष हमें ये कहता है कि हम इसको भव्यता के साथ भी मनाएं और एक उत्सव के मूड में भी मनाएं, और हम दोनों चीजें कर रहे हैं। हम इसको भव्यता के साथ भी मना रहे हैं, और जैसे उन प्रवासी भारतीयों के लिए त्योहार है, हमारे लिए भी एक बड़ा त्योहार है कि हम महात्मा के रिटर्न का 100वां साल मना रहे हैं। तो हमने बहुत चीजें इसमें नई की हैं। सबसे पहले 7 तारीख को हम यूथ पीबीडी कर रहे हैं। पीआईओज और एनआरआईज के बच्चे वो भारत आए और पहले दिन इसमें शामिल हो, इसमें पार्टिसिपेट करें। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि उसके हमने 2 सेशंस बहुत स्पेशल रखे हैं। एक सेशन है भारत को जानो, जिसका मतलब होगा कि भारत की एंशिएंट कल्चर, भारत की आर्ट्स, जो भारत जिस पर गर्व करते रहे हम 5000 साल तक का वो भारत, उसको उन बच्चों को बताया जाए। भारत की वार्मथ, भारत की हॉस्पिटैलिटी। तो पहला सेशन होगा भारत को जानो, और दूसरा सेशन होगा भारत को मानो, कि वो भारत केवल एंशिएंट इंडियन और कल्चर पर ही गर्व नहीं करता, वो आज मंगलयान बनाता है, वो आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में माहिर है। तो जो हमारी इनोवेशंस हैं, सारी भारत की इनोवेशंस, इंडिया इज इनोवेटिंग, ये उसका हमने थीम रखा, भारत को मानो। तो दूसरा हमारा सत्र होगा भारत को मानो। और तीसरी चीज हमने की है, जिसके लिए मैं गुजरात का खास धन्यवाद करूंगी, कि जो रात को हम कल्चरल इवनिंग्स और डिनर करते हैं, तो यूथ पीबीडी के लिए हमने तय किया है कि गुजरात की 4 विश्वविद्यालय छांटे हैं हमने, और वो चारों अलग क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज हैं। एक है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, एक है लॉ यूनिवर्सिटी, एक है आईटी यूनिवर्सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। इन 4 यूनिवर्सिटीज में उन बच्चों को बांटा जाएगा। ये यूनिवर्सिटीज के बच्चे अपने आप वहां कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और डिनर ऑर्गेनाइज करेंगे, और वहां इंटरेक्टिव सेशन होंगे इन बच्चों के, उन विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि 4 अलग विश्वविद्यालय वो हमारे जाने, और जनरल यूनिवर्सिटीज नहीं, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, आईटी यूनिवर्सिटी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, इन 4 यूनिवर्सिटीज में वो बच्चे जाएंगे, और सारा कार्यक्रम उनका वहां के बच्चे ही अरेंज करेंगे, वही डिनर अरेंज करेंगे, वही कल्चरल इवनिंग अरेंज करेंगे, और उनको एक इंटरेक्टिव सेशन वहां मिलेगा। ये हमारा 7 तारीख का कार्यक्रम है। 8 तारीख को इस बार हमारे मुख्य अतिथि हो रहे हैं गयाना के प्रेसिडेंट सर डोनाल्ड रामअवतार। तो पहला सेशन इनॉग्रेल सेशन होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। और हमें आशा है कि इस बार हमने साउथ अफ्रीका से वहां की विदेश मंत्री को बुलाया है। खबर ये मिल रही है कि वो आएंगी, लेकिन अभी पक्का खबर नहीं आया है। हम लोगों ने निमंत्रण उनको भेजा है, और जो खबर आई है वो ये है कि वो आएंगी।
क्योंकि हम ये चाहते थे कि इसमें साउथ अफ्रीका से जरूर एक रिप्रेजेंटेशन हो, तो हमने साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री को भी बुलाया है। वो 8 तारीख का पहला सेशन होगा। जो लोग पहले से प्रवासी भारतीय दिवस देखते रहे हैं, उन्होंने ये देखा होगा कि इसमें चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और अपने अपने यहाँ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। वो सेशन तो 9 को होगा ही, मैं बताऊंगी आपको कि किन किन चीफ मिनिस्टर्स की हाँ हो गई है। लेकिन हमने इनॉग्रल के बाद एक प्लीनरी रखा है। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इन 6 महीनों में भारत सरकार ने चलाए हैं, उनके संबंधित मंत्री आएंगे और इस पर पूरा विवरण देंगे अपने कार्यक्रम का और आह्वान करेंगे प्रवासी भारतीय को कि वो इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें। इसमें नमामि गंगा है, इसमें स्वच्छता अभियान है, इसमें कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट है, इसमें अर्बन प्लानिंग स्मार्ट सिटीज हैं और इसमें टूरिज्म है। उनके अपने मंत्री वो आकर के इसमें उन प्रवासी भारतीयों को बताएंगे कि हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम की डिटेल्स क्या हैं, और साथ ही उनका आह्वान भी करेंगे कि वो आएं और इसमें पार्टिसिपेट करें। ये एक नया प्लीनरी सेशन हम लोगों ने तय किया है। एक और प्लीनरी इस बार हमने नया लिया है, अचीवर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा के वो लोग जो अपने अपने देशों में जहां रह रहे हैं, वहां राजनीति में, एकेडेमिया में, मीडिया में, साइंस में, जर्नलिज्म में अगर उन्होंने कुछ बुलंदियों को छुआ है और भारत की पहचान वहां बनाई है, तो इसके स्पीकर्स हम अचीवर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा में उन्हीं में से चुनेंगे और वो इस सेशन को चलाएंगे। ये 2 नए प्लेनरी हम लोगों ने इस बार सोचे हैं। जो चीफ मिनिस्टर्स का सेशन है वो जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। एक पीबीडी ओरेशन 8 तारीख को हमेशा होता है, केवल एक व्यक्ति आकर गांधी जी पर बोलता है। उस पे हमने प्रोफेसर अरविंद शर्मा अमेरिका से आ रहे हैं, उनको पीबीडी ओरेशन के लिए रखा है। कि 9 तारीख को जो चीफ मिनिस्टर्स का सेशन होगा, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 10 चीफ मिनिस्टर्स की हाँ हमें अभी तक आ गई है। इसमें यूपी, केरल, नागालैंड और बाकी भाजपा शासित प्रदेश हैं एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। 3 नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, यूपी, केरल, नागालैंड, और 7 भाजपा शासित हैं एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। हो सकता है कल और बढ़ जाए चुनाव परिणाम आने के बाद, लेकिन अभी तक हमारे पास 10 मुख्यमंत्रियों की हाँ है। ये सेशन होगा जिसमें वो अपने अपने राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद एक सेशन है ओरेशन का ही, जो इसमें प्रोफेसर अरविंद शर्मा आएंगे और पहले वाले में प्रोफेसर राजगोपाल आएंगे। थोड़ा अंतर है इसमें। 2 ओरेशंस होती हैं। एक ओरेशन होती है केवल यूथ के लिए कि गांधी का पर्सपेक्टिव यूथ की दृष्टि से क्या है, उसमें श्री राजगोपाल आएंगे 7 तारीख को, और इस ओरेशन में प्रोफेसर जगदीश शर्मा आएंगे। हमारा अब तक का अंदाजा है कि लगभग 3000 प्रवासी भारतीय इसमें भाग लेंगे। इसमें एनआरआई कंट्रीज भी आएंगे और इसमें पीआईओ कंट्रीज भी आएंगे। दोनों का अंतर मैं बता दूं, पीआईओ कंट्रीज वो हैं जो भारतीय मूल के लोग जहां रहते हैं, यानी बरसों बरस पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले जो लोग गए थे, वो कंट्रीज पीआईओ कंट्रीज हैं। और एनआरआईज हैं अनिवासी भारतीय जो अब गए हैं, भारत में पढ़ लिख कर गए हैं और अब दूसरे देशों में रह रहे हैं। वो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीय, और पीआईओ हैं भारतीय मूल के लोग। इनके लिए हमने 4 कॉन्करेंट सेशन किए हैं। ये भी पहली बार हो रहा है। 4 कंकरेंट सेशंस 9 को होंगे। और वो सेशंस क्या हैं? एक सेशन हमने शुद्ध पीआईओ कंट्रीज के लिए किया है। ये पीआईओ कंट्रीज एक्चुअली गिरमिटिया देश कहलाते हैं। और ये गिरमिटिया शब्द कैसे आया ये भी मैं बता दूं कि ये इंडेंचर्ड लेबर के लोग एक अग्रीमेंट के तहत वहां गए थे, चाहे मॉरिशस गए हों, सुरिनाम गए हों,
फीजी गए हों, तो इनको अंग्रेजी में अग्रीमेंट कहना नहीं आता था, तो ये एक दूसरे से कहते थे तुम गिरमिट करके आए हो, तुम गिरमिट करके आए हो। और इसीलिए उन्होंने अपने नाम रख दिए कि हम गिरमिटियाज हैं। वो आज भी अपने आप को गिरमिटिया ही कहते हैं। अभी मैं मॉरिशस गई थी, उनका 180th ईयर था, जब पहला भारतीय वहां गया था, तो उन्होंने कहा कि हम गिरमिटियाज हैं, और गिरमिटिया के नाम से लेटर हेड छपाते हैं, गिरमिटिया देश कहलाते हैं। पहली बार पीबीडी में हम गिरमिटिया देशों का एक अलग कॉन्करेंट सेशन कर रहे हैं। इसी तरह से हम खाड़ी के देशों का, गल्फ कंट्रीज का, जहां 70 लाख लोग हमारे काम करने के लिए गए हैं, उनके इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन गल्फ कंट्रीज का हम अलग सेशन कर रहे हैं, और जिसमें हम गल्फ के अपने 6 एम्बेसडर्स को भी बुला रहे हैं, ताकि वो स्वयं बैठ करके सुने कि उनकी समस्याएं क्या हैं। तो एक कॉन्करेंट सेशन गिरमिटिया देशों पर होगा, एक कॉन्करेंट सेशन गल्फ कंट्रीज पर होगा, और पहली बार एक सेशन हम कर रहे हैं फ्रेंच स्पीकिंग डायस्पोरा का, फ्रेंकाफोना। फ्रेंच स्पीकिंग डायस्पोरा कहते थे कि हमें तो कभी कोई बुलाता ही नहीं, हमारी भी अपनी कोई समस्याएं हैं, तो उनके लिए हमने एक अलग से कंकरेंट सेशन किया है फ्रेंकाफोना पे। और चौथा हमारा कंकरेंट सेशन हो रहा है डायस्पोरा की ऑर्गेनाइजेशंस पर। हर देश में भारतीयों ने अलग अलग संगठन बना रखे हैं, वो भाषा के आधार पर भी संगठन बने हुए हैं उनके, कई मराठी मंडल है, तमिल संगम है, तेलुगु सभा है, और कुछ भारतीय समुदाय के संगठन है। उनको समस्याएं आती हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, इसके बारे में हमने एक अलग सेशन रखा। तो पहली बार 4 नए कंकरेंट सेशन हमने तय किए हैं, एक गिरमिटिया देशों के लिए, एक गल्फ कंट्रीज के लिए, एक डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और एक फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंकाफोना के लिए। ये 4 नए सेशन हमने इस बार डाले हैं, और रात में तो 9 तारीख को राष्ट्रपति जी प्रवासी भारतीयों को सम्मान देंगे ही। तो जो परंपरागत चीजें थी उनको रखते हुए बहुत से नए इनिशिएटिव हम इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में ले रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी मुख्यमंत्री गुजरात का, जिनसे इतना सपोर्ट हमें मिल रहा है, इतना समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज और इतनी व्यापक समापन समारोह हम नहीं कर सकते उनकी समर्थन और सहयोग के बिना। बहुत ज्यादा सहयोग हमें मुख्यमंत्री श्री से मिल रहा है, मैं आभार प्रकट करती हूँ। और हमारी पार्टनर मिनिस्ट्री जो यूथ अफेयर्स वाली है, पूरा यूथ पीबीडी का आयोजन हम इनके साथ मिलकर कर रहे हैं। तो एक पूरा दिन का कार्यक्रम हमें यूथ अफेयर्स के साथ मिलकर करने को मिल रहा है। एक पूरे का पूरा ये कार्यक्रम हम गुजरात के समर्थन सहयोग से कर रहे हैं, और बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम के आयोजन में मुझे अपने एमओएस जनरल वीके सिंह से मिल रहा है। हमने कहा है कि बिल्कुल आप आर्मी की अपनी पुरानी उसको लेकर कमांडर बन जाइए इसके, और किसी तरह की कोई कमी इसमें रहनी नहीं चाहिए। तो हमारे इसके कमांडर हमारे जनरल वीके सिंह हैं, और फिक्की इसमें हमारा इवेंट मैनेजर है। मैं फिक्की के लोग यहाँ बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि फिक्की बहुत कर्मठता से लगा है। एक बार उन्होंने हमारे अंदर का पैशन देख लिया कि हम किस तरह इसको करना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट जस्ट अनदर इवेंट फॉर फिक्की, लेकिन उन्होंने भी उसी पैशन के साथ इसको लिया। फिक्की हमारा इवेंट पार्टनर है, और गुजरात स्टेट हमारा पार्टनर स्टेट है, यूथ अफेयर्स हमारी पार्टनर मिनिस्ट्री है, जनरल वीके सिंह हमारे कमांडर हैं, और सेक्रेटरी सोनी, अभी नए सेक्रेटरी हमारे आए हैं, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, और ये कार्यक्रम चूंकि 9 जनवरी को है, इसलिए पहले ही उनको हमने ले लिया है, जो इसकी कमांड संभाले हुए हैं, सारा जो एग्जीक्यूशन है उसकी। मैं इन सबके प्रति आभार प्रकट करती हूँ, और अब चाहूंगी कि सीएम गुजरात इसमें जो भी ऐड करना चाहें और अपनी ओर से जो जो इन्होंने किया है उसके बारे में आपको सूचना दें। फिर सर्वानंद जी इसके बारे में कुछ कहेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रश्नोत्तर ले लेंगे। धन्यवाद। Thank you, ma'am. May I request the Honorable Ministers, Chief Minister of Gujarat, Srimati Anandiben Patel, to address the audience. आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ। दिल्ली में मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मित्रों, 7, 8, 9 जनवरी के दिन ये प्रवासी भारतीय दिन हम मना रहे हैं। उसका पूरा ब्यौरा हमारी मंत्री श्री सुषमा जी ने आपके सामने रखा है। इसमें 2 प्रोजेक्ट गुजरात सरकार की ओर से होने वाला है। एक है 8 तारीख को
शाम को काकरिया लेक पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। इसमें सभी देश भर की जो सांस्कृतिक परंपरा है हमारी, वो हमारे गुजरात के ही बच्चे और खास करके जो झुपड़पट्टी में रहते हैं ऐसे बच्चों को चुनकर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया है और वो आयोजन कांकरिया लेक पर होगा। और इसके बाद 1-1.25 घंटे का ये कार्यक्रम है और इसके बाद जो एनआरआई वहां आएंगे सब लोग पीछे उसका एक डिनर का आयोजन किया है। ये राज्य सरकार की ओर से होने वाला है। जो 8 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें सॉल्ट माउंट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। महात्मा मंदिर को आप सब लोगों ने देखा है क्योंकि आप आते रहे हो वहां। तो इसके पास में सॉल्ट माउंट बना हुआ है और इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांधी जी का जीवन चरित्र, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक, बीच में उसने कितने कार्यक्रम किए, किस तरह आजादी दिलवाई, ये सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने वहां आयोजित किया है। वो परमानेंट होगा और जब जब वहां बच्चे आएंगे, युवा आएंगे या अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे तो वो देखेंगे कि हम लोगों को किस तरह आजादी प्राप्त हुई है और ये आजादी का पूरा वहां हम लोगों ने रखा है। वो उद्घाटन पीएम साहब करेंगे। ये 2 कार्यक्रम राज्य सरकार ने अलग से तय किए हैं, उसकी पूरी तैयारियां हम कर रहे हैं। मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ सुषमा जी का कि 100 साल जब गांधी जी की वापसी का हुआ, उसका मनाने का अवसर गुजरात को दिया, क्योंकि गांधी जी गुजरात के थे तो वो अवसर हमें मिलना चाहिए। तो 4 साल पहले नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय 4 साल पहले उन्होंने आम सभा में कहा था और तत्कालीन पीएम को भी लेटर लिख के कहा था कि 2015 में 100 साल पूरे होते हैं तो उसका वो भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का अवसर गुजरात को दिया जाना चाहिए और इस अवसर को मैं प्रदान किया है। इसलिए मैं सुषमा जी का बहुत ही आभारी हूँ। आप सबको भी मैं निमंत्रित करती हूँ कि आप आइए गुजरात में और ये प्रवासी भारतीय दिन जो मना रहे हैं इसमें आप हिस्सेदार बनिए और हमें प्रोत्साहित भी करिए। धन्यवाद। धन्यवाद आनंदीबेन। सर्वानंद जी। Honorable Minister for External Affairs and Overseas Indian Affairs, Srimati Sushma Swaraj ji, and Honorable Chief Minister of Gujarat, Srimati Patel ji, and Minister of External Affairs for States, V.K. Singh ji, and the respected members of FICCI and respected journalist friends. First of all, I'd like to thank Sushma ji for giving my ministry an opportunity to be a part of this particular important event, Pravasi Bharatiya Divas. And as you know, the youth are the most dynamic and vibrant segment of our population. India is one of the youngest nations in the world, with about 65% of Indian population below 35 years of age. Our government is focused on youth-led development. The Indian youth have always been highly talented, hardworking, and enterprising. A large number of young Indians have moved to various parts of the world and have made valuable contribution in the socio-economic evolution of a number of countries. In fact, a number of young Indians have started returning home, attracted by the opportunities created by fast-growing economy of India.
the Youth Pravasi Bharatiya Divas will provide an important forum to those overseas young Indian diaspora to know more about India and to engage with the Indian youth. My ministry is arranging for participation of Indian youth from all parts of the country in this event so as to facilitate interaction between the overseas young Indians and Indian youth. Thank you. Thank you, Sarvanand ji. Questions, if any? जी पूछिए। मैडम मेरे दो छोटे से प्रश्न हैं। जी, एक जी। तो जो आपने फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा जी उसमें मोदी जी का बड़ा एम्बिशियस प्लान है मेक इन इंडिया। जी तो क्या कोई ऐसा सेशन, क्योंकि बिजनेसमैन भी बाहर से जी, आ रहे जी, हैं, जी। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं? जी हाँ। ये क्या उसके लिए कोई अलग सेशन है या नहीं? और दूसरा छोटा प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि अभी तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रहे हैं? जी, जहां तक पहले सवाल का है, जो हमने सीएम्स का सेशन रखा है उसमें हमने निर्मला सीतारमण जी, जिनका ये महकमा है मेक इन इंडिया का, उनको स्पीकर के तौर पे रखा है। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का जो सेशन है उसमें मेक इन इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन रहा है, और जिसमें जो राज्य आएंगे, क्योंकि पैसा तो अलग अलग जगह राज्यों में आएगा, तो राज्यों के चीफ मिनिस्टर बोलेंगे और केंद्र की तरफ से निर्मला जी बोलेंगे और अरुण जेटली जी उसको चेयर करेंगे। इसलिए ये मेक इन इंडिया जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो प्रवासी भारतीय का एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन रहा है। जहां तक अलग अलग लोगों के आने का सवाल है, अभी तक का मैक्सिमम यूएई से 40 ऐसे देश हैं जहाँ से ज्यादा लोग आते हैं। जी यूएई से सबसे ज्यादा। हाँ, अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो यूएई से। मैम एक सवाल यहाँ से। जी मैम, विपक्ष का कहना है कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये गुजरात में क्यों हो रहा है? व्हाई इज देयर सो मच फोकस ऑन ब्रांड गुजरात? ये एक बयान डेरेक ओब्रायन ने दिया है तृणमूल कांग्रेस से। सो दे आर आस्किंग व्हाई गुजरात, ओनली गुजरात। वैसे डेरिक का ये सवाल उठाने से पहले ही मैंने आपको ये बता दिया कि गुजरात में क्यों हो रहा है। गुजरात में नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हो रहा। अभी आनंदीबेन ने आपसे बताया कि 4 वर्ष पहले, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से उन्होंने ये कहा था, क्योंकि ये प्रवासी भारतीय दिवस दिल्ली के अलावा भी बाहर होता रहा है। एक बार केरल में हुआ, एक बार तमिलनाडु में हुआ, एक बार राजस्थान में हुआ। राजस्थान के जयपुर में हुआ, केरल के कोच्चि में हुआ, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। तब उन्होंने मांग की 4 साल पहले कि 2015 हमें दे दो, क्योंकि 2015 शताब्दी वर्ष महात्मा गांधी के आने का, वो गुजरात में करेंगे। ये एक सुखद संयोग है कि आज वो प्रधानमंत्री हैं और गुजरात में हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री से ये मांग कर ली थी कि ये गुजरात में होना चाहिए। तो इसलिए डेरिक साहब ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल गैर प्रासंगिक है। आज के समय अगर कोई राज्य बनता है रेलिवेंट और प्रासंगिक इसको करने के लिए, वो गुजरात बनता है। जी राकेश। इन्होंने शुरू किया, एक उद्देश्य के साथ शुरू किया। 12 हो गए, ये 13वां है। बार कई बार मैंने कवर किया है, 6-7 कवर किया। सिंगल विंडो की बात कही गई प्रवासी भारतीयों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन आज तक अपने को जानकारी नहीं है। यदि आपके पास केंद्रीय स्तर पे उन प्रवासियों के लिए सिंगल विंडो के सिस्टम की व्यवस्था की गई हो तो उसकी जानकारी दें। और साथ साथ अभी तक हमने 12 में क्या बड़ा हासिल किया आज तक इन सम्मेलनों से? धन्यवाद। देखिए, जहां तक पुरानी घोषणाओं का सवाल है, आपको भी मालूम है कि घोषणाएं हुई लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई अमली जामा उन पर पहनाया गया। और जब अमली जामा नहीं पहनाया गया तो बहुत कुछ हासिल भी नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने प्रारंभ में ही कहा कि ये प्रवासी भारतीय दिवस अलग है। अभी भाटिया जी ने जो सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया के लिए सिंगल विंडो बन रहा है, ये आपको मालूम है। मेक इन इंडिया के लिए अनेक इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं, ये आपको मालूम है। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है नए सिरे से अब शुरू होंगी। जो कल्पना अटल जी के समय रखी गई थी
वो कल्पना बीच बीच में 12 साल चलती जरूर रही, लेकिन वो कल्पना साकार नहीं हुई। आज उससे भी ज्यादा पैशन लेकर के उस कल्पना को साकार करने के लिए इस प्रवासी भारतीय दिवस से शुरुआत होगी, और जिसमें मेक इन इंडिया के साथ सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, इसके साथ बड़ा हासिल होना, उसकी भी शुरुआत इस 2015 के प्रवासी भारतीय दिवस से होगी। मैडम जी जी क्या हासिल हुआ? हासिल के मामले में मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा कि पीछे 12 साल तक जो देखा गया उसमें तो यही लगा कि ये यहाँ के उद्योगपतियों और वहाँ के उद्योगपतियों का एक मिलन है, ना तो वहाँ के कोई जो जनरल आम लोग हैं उनको भारत सरकार से क्या लाभ मिला, या वहाँ के जो इन्वेस्टर या उद्योगपति हैं उससे यहाँ के आम आदमी को क्या लाभ मिला, ये थोड़ा बताएंगे, और आगे की क्या योजनाएं हैं आम लोगों के लिए। और सेकेंडली एक और प्रश्न पूछूंगा कि महात्मा गांधी के नाम पर जो लेक्चर के लिए अमेरिका से लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान में ऐसे कोई योग्य व्यक्ति भी थे क्या? पहले का जवाब दे दूं, क्योंकि ये इंडियन डायस्पोरा के लिए है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नहीं है बोलने वाला, एक से एक अच्छे हैं बोलने वाले, लेकिन हम चुन रहे थे कि इंडियन डायस्पोरा से कोई मिले जो गांधी पर बोले, इसलिए हमने बाहर से चुना। जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए यहाँ से चुना है। राजगोपाल जी यहाँ हैं ताकि उनको ये लगे कि भी कोई प्रेरणादायक व्यक्तित्व आज भी गांधी के प्रति है हमारे पास, लेकिन वहां हम इंडियन डायस्पोरा से चुनना चाहते थे, इसलिए हमने वहां से चुना और मेल किया है, एक यहाँ का वहां के बच्चों के लिए और एक वहां का उन बड़ों के लिए। और जहां तक आपने कहा हासिल होने की बात, आपने देखा होगा कि जो मैंने अब रूपरेखा रखी आपके सामने, वो उद्योगपतियों से निकाल कर रखी है। अब ये उद्योगपतियों का, यहाँ के उद्योगपतियों और वहां के उद्योगपतियों का सेशन नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई उनमें आम लोग हैं। जब मैंने कहा गल्फ कंट्रीज के लोगों की समस्याएं, वो लेबर जो वहां जाता है उसके बारे में और जवाब देने के लिए और सुनने के लिए 6 एम्बेसडर्स। जो मैंने कहा पीआईओ कंट्रीज, गिरमिटिया देश, उन गिरमिटिया देशों की समस्याएं, 6 पीढ़ी पहले उनके लोग मजदूर के तौर पे गए थे, आज उनकी 6ठी पीढ़ी वहां शासन कर रही है। उन दोनों के बीच की समस्याएं, उनका अलग सेशन रखा। मैंने फ्रेंच स्पीकिंग का कहा, उनका अलग सेशन रखा। इवन वो संगठन, जो भारतीय समुदाय के संगठन वहां चल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या, वो हमने यहाँ रखा। तो उद्योगपतियों का मिलन, उद्योगपतियों के साथ ये प्रवासी भारतीय दिवस नहीं है। इस बार का बिल्कुल अलग प्रवासी भारतीय दिवस है। केवल उद्योगपतियों के मिलन तक हमने इसको सीमित नहीं रखा, इसकी भूमिका इतनी व्यापक की है। और जो रूपरेखा मैंने आपको बताई उससे आपको ये लग गया होगा कि पुराने प्रवासी भारतीय से ये कितना अलग है। Madam Minister, Yes. here I'm standing here. Please. Okay, yeah. See, there are 2.5 crores of overseas Indians across the globe, and their assets are estimated at $1 trillion, which is half of India's GDP. And every year they're sending us $70 billion, which is 1/3 of all the FDI since the liberalization of Indian economy. Yes. And it was the first India government which introduced this Pravasi Bharati, this. And this year is going to be a very historic thing because we are celebrating 100th Yes, anniversary of the Gandhiji Mahatma's coming return. back. So I think this government should take the whole process to the next level. So may I suggest that your government should consider granting dual citizenship to overseas Indians, number 1, and grant them voting rights, number 2. Number 3, have their representation in the Rajya Sabha. The president can nominate at least one overseas Indian from each continent. At least half a dozen of them can articulate their problems in Indian Parliament. How would you react to these suggestions? Thanks. You have not asked any question, you have only suggested, and you have suggested 3 things, good suggestions for action. Yes, 1 minute. The Prime Minister had announced the merger of the OCI and PIO OCI. card. Yes. What has happened to that, and will the OCI cards be applicable for the Francophone countries as well, since they have problems in presenting the documents required? OCI cards are not country related.
OCI cards are for NRIs. PIO cards are for PIO countries. Now we are merging both PIO and OCI. And earlier OCI cards holders, they were getting lifelong visa. Now even the PIO card holders will get the lifelong visa, and we will merge the two and there will be only one card. Yes. प्रवासी भारतीयों के पास भारत की नागरिकता है, हर बार उनकी एक मांग होती है कि हम लोगों को स्वदेश आए बगैर मतदान का अधिकार मिले। तो क्या प्रवासी भारतीय दिवस में पिछले 5 सालों से तो मैं कवर कर रहा हूँ, हर प्रोग्राम में उन लोगों की मांग होती है, तो क्या इस दिशा में कुछ प्रवासी कार्य मंत्रालय कार्य कर रहा है? जी, इस दिशा में इलेक्शन कमीशन कार्य कर रहा है। प्रवासी भारतीय मंत्रालय ने इलेक्शन कमीशन को बोला और उनके जेरे गौर है ये चीज, और रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि 2-3 इसमें सुझाव आए। एक आया कि एम्बेसीज में ईवीएम रख दी जाए और वो लोग आकर के एम्बेसी में वोट करें। एक आया कि प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए, कि वो अपनी बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ लिख कर दे दें और उसको ये दे दें। और तीसरा ये कि वो यहाँ आकर के वोट करें। अभी तक कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन नहीं ले सका है, लेकिन ये 3 तरह के सुझाव हैं जिसमें ये असुविधा जो उन्हें यहाँ आकर वोट देने की होती है, इसका हल निकला है और मुझे लगता है जल्दी इसका हल निकलेगा। यस, हेलो। The CMs who are not coming, ma'am, Andhra and Telangana, have they given any reason why they are not coming? नहीं, रीजन नहीं होता हर बार, some come, some don't come. Babu Naidu is supposed to be a friend. नहीं, इसमें फ्रेंड और एनिमी का कहाँ सवाल पैदा होता? ऑल आर आवर फ्रेंड्स. UP is coming, Kerala is coming, Nagaland is coming. So don't say that only friends are coming and there are enemies. There are no enemy. But maybe they are preoccupied. I told you that as yet we have got the confirmation from 10 chief ministers, and I also said there may be many more. अभी तो समय है, अभी तो समय है, औरों का हमें आ सकता है। हाँ, अभी तक जो आई वो 10 की बताई मैंने आपको। Madam Minister, here in the center. Hello, yes, in the yes, center. Yes. Madam, I have 2 sons and both are placed as a NRI. Yes. And when I asked them that why don't you come to India and work here, they are in the manufacturing side and in the high profession zone. They say that our, technology is 50 years, back from the advanced countries. And whenever they are coming with new technology, there is no any sort of, endorsement for those companies, either from Singapore or from Malaysia or from Asian countries where we are trying to make, free trade agreements. But neither of their technology, which is very much useful for our countries, has never been endorsed, or they are being, given any sort of advantages, or they are given any sort of facilities so that they can have their manufacturing in India. As far as trading is concerned, the companies are doing well with the Singapore and other countries. But the humble submission and the question is, because you run an overseas ministry also, so why not to make a sort of companies which are technological friendly for you, useful for you? They can be named, they should have any sort of, they can be given clearance fast, so that further we can have more some sort of constructive works in India. I think you should tell your sons that things have changed in India. They should come and experience our new atmosphere. That will be better. Hello, madam, they are regularly coming to India and they are facing a problem. Now your son will have a different experience and it will be a good experience for them. Yes. मंत्री जी, ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं इनकी, उत्तर पूर्वी राज्य हैं जो इनकी अक्सर शिकायत रहती है कि इनको मुख्य धारा में नहीं इनको सम्मिलित किया जाता। तो ये जो आपका सेगमेंट आपने शुरू किया है, ये बहुत अभिनंदन योग्य है। इसमें जो आपने कहा है कि आप मानो और जानो, भारत मानो और जानो की एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हैं, उसमें आप उत्तर पूर्वी राज्यों पे कितना जोर देंगी? पूर्वोत्तर राज्य के तो मंत्री हमारे साथ हैं, ये तो हमारे पार्टनर मिनिस्टर हैं,
पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को तो इतना ज्यादा गौरव होगा कि पहली बार पूर्वोत्तर राज्य का मंत्री पार्टनर मिनिस्ट्री के तौर पर प्रवासी भारतीय के साथ जुड़ा है। आस्क योर सन टू कम एंड अटेंड ओनली भारत को मानो, हिज परसेप्शन विल चेंज। मंत्री जी, जस्ट कॉल योर सन्स टू पार्टिसिपेट इन वन सेशन दैट इज भारत को मानो, देन ही विल नो। No, that's what I am telling you. Just ask him to attend one session. भारत को मानो, his perceptions will change. मंत्री जी, हम बहुत सालों से प्रवासी भारत कवर कर रहे हैं जी। जब हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो सर्विस क्लास के हैं जो बाहर के देशों में काम करते हैं। जी। क्या हमारी गवर्नमेंट की ये पहल नहीं रहती है कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होटलियर वगैरह जो वहाँ अच्छी तरह बसे हों उनको यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बुलाएं? नहीं, देखिए इसमें प्रवासी भारतीय यानी जो हमारे हमारे एनआरआईज हैं उनमें जो बड़े हैं वो तो बुलाए जा रहे हैं, वो तो आएंगे, लेकिन अकेले उन तक सेक्शन नहीं रह जाए ना। वो जो सवाल वहां से आया था कि आम आदमी का क्या, केवल उद्योगपति से उद्योगपति मिल जाए, तो हमने सारे सेक्शन रखे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे जो वो सेशन होगा, लेकिन जो 4 कंकरेंट सेशन मैंने बताए उसमें वो लोग आएंगे जिसमें उनकी समस्याएं डिस्कस होंगी। तो हमने एक बहुत बढ़िया बैलेंस किया है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में बेचारा आम आदमी क्या करेगा आके, लेकिन जो दूसरा है उसमें आम आदमी आएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में उद्योगपति आएंगे। यस, पूछिए। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, since 2010, MEA saying that it is awaiting Tamil Nadu government to arrange for interministerial meet regarding repatriating of Sri Lanka refugees in India. But so far there is no development. If post-war situation in Sri Lanka remains peace, why India is thinking much in repatriation of Sri Lankan refugees? This is not a relevant question to PBD, and in the beginning I said that please ask only the questions which relate to PBD. This does not relate to PBD. Ma'am, here. I'm here. Yes. Ma'am, just want you to check, was the Chief Minister of West Bengal invited? And once the invitation was sent, what was her reaction? No, I personally invited everybody, every chief minister, including the chief minister of West Bengal. All chief ministers didn't respond. Ma'am, Yes. ma'am, this is probably here. Ma'am, this is probably the biggest PBD show we are organizing. And given the huge, जैसे आपने कहा कि बहुत व्यापक समारोह है, तो ये can Gujarat Chief Minister give an insight into how Gujarat is prepared to host? Like we've been hearing reports of massive crunch of hotel rooms and other areas, logistically, and how much this whole event has cost the government to organize. बताना चाहेंगे? लॉजिस्टिक्स वो कहने कि आपने कुछ कितने होटल वगैरह कोई बुक किए हैं, वो सब दिख। एनआरआई जो आएंगे उसके लिए हम लोगों ने सभी होटल बुक कर दी हैं, और दूसरा उसको जो भोजन वगैरह इसके लिए एक अच्छा प्रबंध कर दिया है। जो एयरपोर्ट पर उतरेंगे ये सब लोगों के लिए बीच में एक एनआरआई की होटल आती है, इसमें उसका प्रबंध किया है। वहां जाएंगे, नाश्ता करेंगे और बाद में महात्मा मंदिर में आएंगे, वो भी किया है। और जितनी कार्स चाहिए ये सभी कार्स हम लोगों ने एक्वायर नहीं किया, लेकिन सबके साथ बैठकर ये इंतजाम कर दिया है कि कितनी कार चाहिएगी। दूसरा, जो गुजरात में जो लोग बसते हैं उसके रिलेटिव भी आने वाले हैं, हम लोगों ने वो प्रबंध किया है कि वो उसके घर पर ठहरे। दूसरा, एक तय किया है हम लोगों ने कि मान लो कि मैं हूं तो मैं किसी 1-2 परिवार को मेरे घर पर रखना चाहती हूँ, तो वो भी एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है गुजरात में कि मेरे यहाँ 2 परिवार को या 1 परिवार को मैं रखना चाहती, तो पूरा प्रबंध वे लोग कर देंगे। वहाँ भोजन का, रहने का और महात्मा मंदिर तक भेजने का, ये सभी प्रबंध वो लोग करने वाले हैं। ऐसी तरह से हम लोगों ने पूरा प्रबंध सबके लिए किया है, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। आपके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। प्रवासी पत्रकारों की व्यवस्था प्रवासी पत्रकारों के लिए भी प्रबंध किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। Ma'am, one question to you, EM, Mrs. Swaraj. The issue is you have called in Francophone countries, that's from France, here on your right, ma'am. Okay. There is an issue with NRI 6 in France.
the pagdi, the turban. There is a big issue, and they have been bringing this to the government of India, but nobody has even been able to resolve it. They have to remove their turban to get photographs for the iCards and other things, and many schools also don't allow turbans. So will this issue come up, and are you trying to resolve it? This issue won't come up in PBD, but certainly this issue was raised by me when the Foreign Minister of France, Mr. Fabius, came here, and during my bilateral discussions, I raised this issue vehemently with him. सुषमा जी, मैं दीपक दीवान है, इधर हूँ, इस तरफ आपके दाएं हाथ, मेरे राइट। हाँ। सी यू आपने बताया कि नागालैंड चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, बट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में और डेवलप, सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, वो भी ऐसी स्टेट जहां इंडियंस को इनर लाइन परमिट चाहिए, फॉरेनर को आरएपी चाहिए। आप कैसे समझते हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट को कैसे डेवलप? मैंने आपसे कहा ना, मैंने हर चीफ मिनिस्टर को पर्सनल पत्र लिखा, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, उसमें नॉर्थ ईस्ट के 8 चीफ मिनिस्टर्स शामिल हैं, लेकिन किसी की अपनी प्री ऑक्यूपेशन है, हाँ या ना करना तो उन पर है ना। हर बार जब पीबीडी होता था तो उसमें भी कभी 5 कभी 6 ऐसे मिनिस्टर्स आते थे। इस बार जो हमारे पास अभी तक आया है वो 10 का है, उसमें नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन बाकी चीफ मिनिस्टर्स नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। उनमें से किस किस का हमको अभी और हाँ आ जाएगी, इसीलिए मैंने एक शब्द कहा अभी तक हमारे पास इतनी आई है। मैम बढ़ सकती है, बढ़ने की संभावना। मैम यू सेड इंडियन फ्रेंच स्पीकिंग इन हियर मैम, हियर यस in the middle, ma'am. You said Indian French speaking Indian diaspora, there will be a separate session for them. So I would like to know actually how many countries are included in this diaspora is spread over how many countries? No, many French speaking countries, including Mauritius. They speak French, and actually this demand was raised by them only. So all of them are coming. Many of them are coming. Sushma ji, Many of them are coming. Sushma ji, there was an announcement about a NRI university for the children of our NRIs. And the second question is, how many registrations are already been done and how much are expected? Expected number, I said that about 3,000. So far the registration number is 1200. 1,200 have already been registered. The expectation is of about 3,000. No, nothing is dropped. Sushma ji, left hand side. I am here. Left. First yes, yes. Madam, this is Extreme very left. from your left. Yes. This is very strange for me. इतना पैसा खर्चा करके भारत सरकार प्रोग्राम करते हैं हर साल, मेरे को यही समझ में नहीं आता है, इन 3,000-4,000 लोग जो हर साल आते हैं, आधे से ज्यादा भी लोग मतलब भारत में दोबारा नहीं आता है। भाई उन लोगों ने खा लिए पी लिए निकल गए हैं और बोलते दिखा जाएगा। तो ये कौन समझाने जाएगा इन लोगों को, जो भाई ये तुम्हारा ही देश है, दोबारा आया करो, कुछ पैसा डालो ताकि मतलब हिंदुस्तान देखने के लिए भी। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द कैलासनेस, बिकॉज दे आर द रिच मैन, दे कैन डू, 1000 बार आ सकता है जा सकता है, लेकिन दे डोंट गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम योर साइड, गवर्नमेंट की साइड से, एज वेल एज सम अदर रीजंस, आई डोंट नो एग्जैक्टली। मैंने आपसे कहा ना, इस पर केवल खा पी के वापस नहीं चले जाएंगे। जो 13वां सम्मेलन हम कर रहे हैं, जब 14वें सम्मेलन की हम समीक्षा करेंगे तब आप मुझसे बात करिएगा कि इतनी प्रेरणा और इतनी इंस्पिरेशन इस बार उनको मिलेगी। ये इसीलिए हमने सेशंस अलग ही रखे हैं कि वो Same time, there are many poor Indians who are going to work in abroad. They are still stranded in some Gulf countries and even in Saudi Arabia too. And earlier there are many Indians who are stranded in Saudi Arabia. Is there any actions taken towards that issues, ma'am? 40 people were stranded in Saudi Arabia. We evacuated them, and now that's why we are holding a special session on Gulf countries.
so that we are apprised of their problems up front. Thank you, friends. Thank you, ladies and gentlemen. Kindly join us for a reception at the foyer. आप सब चाय